blouses have gone down to bralettes. Our industry is getting very revealing when it comes to women. So what Yeah. is your opinion on that? मैं जब सोशल मीडिया को देखती हूँ, Hmm. it kind of pains me. Anjali Fogar with us, and she is the founder for Designer Dream Collection. Thank you so much, Tina. Pleasure is all mine. Thank you for such warm welcome. जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको समझ नहीं आ रहा है कि कितना दिखाना है और कितना छुपाना है। आके बोलते हैं भी व्यूज के लिए क्या नंगी हो जाऊं, और उन्हें दिखाया जा रहा है। उन्हें सो कॉल्ड सेलिब्रिटी लोग फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके नंगे तस्वीरों को लाइक करते हैं। दिस इज लाइक रूइनिंग योर यूथ। इट पेन्स मी कि हर चीज व्यूज और नंबर्स का, पैसे का ही गेम बन के रह गई है, जहाँ सभ्यता लूज होती जा रही है हमारी, और लोग उसे देख के प्रोत्साहन ही दे रहे हैं। देयर हैज टू बी बाउंड्रीज एंड फ्यू थिंग्स नीडेड टू बी ए रेटेड, कि ये सिर्फ अडल्ट कंटेंट है, ये अंडर एज बच्चों तक नहीं पहुंच। Hello everyone, I'm very excited today. Today we have a very beautiful soul with us from a very good and enthusiastic industry, fashion industry, and that's Anjali Fogar with us. And she is the founder for Designer Dream Collection. Welcome, Anjali, and it's so wonderful and nice to meet you today. Thank you so much, Tina. Pleasure is all mine. Thank you for such warm welcome. And tell me where this name comes from, Designer Dream Collection, and how it all started. कैसे शुरू हुआ? That's that's a beautiful question, Tina. Like मैं बचपन से ही हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ बहुत इंक्लाइन थी, एंड आई फील कि क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो आप सीख नहीं सकते हो. इट कम्स फ्रॉम क्रिएटर. क्रिएटर गिफ्ट्स this creative energy to only few people, and I felt that I was the chosen one. और मैं हमेशा से एक सपना देखती थी कि एक ऐसा डिजाइनर ब्रांड होगा जो इंक्लूसिव होगा, सबके लिए होगा, हर साइज के लिए होगा, हर कलर के लिए होगा, और हर जेंडर और हर रेस के लिए होगा. तो Amazing. वहीं से वो नाम बॉर्न हुआ, डिजाइनर ड्रीम कलेक्शन. कलेक्शन मीन्स वी डू Yeah. लॉन्च so many new collections throughout the year. एंड वहां से हमेशा एक सपना था. तो ऐसे ये नाम, ये तो मैंने मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, और वही नाम चला रहा. और कभी किसी से हमने कंसल्ट नहीं किया कि क्या नाम. पीपल व्हेन दे स्टार्ट सच बिग ब्रांड, दे गो टू न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमेरिकल चीजों को एनालिसिस करते. बट आई डिड नन ऑफ दैट. इट वाज लाइक बोर्न फ्रॉम सोल, आई वुड से. Well, I think you were meant for that. It's your baby, so the brand chose you to be the mother. Okay. So tell me, you're working in such a fast industry, fashion industry. How difficult it is for you to cope up as a mother, as an entrepreneur? How do you cope up with that speed? कोप अप तब करते हैं वीना, जब कोई चीज आई वुड से कि चैलेंजिंग हो जाती है, तब हमें उसे कोप अप करना पड़ता है. बट आई एम फुली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, एंड लाइक आई सेड दैट आई एम अ chosen one. I love to get involved in the process, and it comes from the soul. Nobody's forcing me to do it. It's not like मैं कर रही हूँ to earn my bread and butter, because I had my corporate career, long corporate career, जो फॉर्चुनेटली मैंने क्विट किया फुली कुछ साल पहले. तो जब मुझे लगा कि मैं इस काबिल हो गई हूँ तो फुली परस्यू माई पैशन एज अ प्रोफेशन. तो कोप अप शब्द मैं नहीं बोलूंगी. आई इंजॉय every moment of it. It's not like random fashion. We focus on sustainability, and every collection there's a story behind it. I truly believe in storytelling, and that's why I love doing podcasts, listening to meaningful stories and sharing inspiring stories with the world. There is a purpose behind it, there's a meaning behind it, and I join and I involve my family and my daughter into the process. Beautiful. So, as you mentioned about your daughter, you have a teen daughter too. So, when she joins you or when she is with you, I saw one of the photographs where you and her are standing on the
on the runway and celebrating each other. Tell me, how is she getting inspired? Like, what is her vision? What does she talk about all this fashion? Is she really interested, or how it is? तो जब वो 4 साल की थी मेरी बेटी, तो उन्होंने, जैसे बच्चा पेंसिल उठाता है, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, उन्होंने दोनों हाथों से स्केचेस बनाने शुरू किए, शू स्केचेस। तो Wow. आई काइंड सेंस की दिस क्रिएटिविटी इज फ्लोइंग Through you. ऑन Yeah. फ्रॉम समवेयर। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैं चैनल हूँ, डेफिनेटली अ लिटिल बिट फ्रॉम माई, शी इज मच बेटर, हर स्केचेस आर सो प्रोफेशनल, एंड आई सेंस्ड कि उनको क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट है, इधर इट्स म्यूजिक, इधर इट्स डांसिंग, शी डज भरतनाट्यम, अभी तो अरंगेत्रम का टाइम आ गया, इतने सालों से वो सीख रही हैं, शी इज अ प्रोफेशनल डांसर। तो अच्छा लगता है उन्हें इन्वॉल्व करना। मुझे नहीं पता इस स्टेज पे मैं ये बोल सकती हूँ कि वो डिजाइनर बनेंगी, बट मेरा गोल ये रहता है कि पेरेंटिंग डज नॉट कम विद अ मैनुअल, रीना। हमको, True. हम हर, एंड आई ट्रूली फील कि मैं, आई एम नॉट द बेस्ट मदर, बट आई ट्राई टू इन्वॉल्व हर, ट्राई टू लर्न फ्रॉम हर, लिसन टू हर, गेट आइडियाज फ्रॉम हर, सो शी फील इन्वॉल्व। और जिस दिन उन्हें क्रिएटिव लोगों का एक होता है ना कि थोड़ा एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपका ब्लॉक हो जाता है, यू कैन नॉट डू क्रिएटिव स्टफ बिकॉज आइडियाज आर नॉट फ्लोइंग। तो उस समय मैं उन्हें सुनना पसंद करती हूँ कि उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज में उनके साथ इन्वॉल्व होना पसंद करती हूँ। वो गाने लिखती हैं, Wow. और स्कूल भी गई तो हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज, स्पिरिचुअल कलेक्शंस उन्होंने कुछ बहुत डिजाइन किए हैं। तो आई फील दिस इज हाउ आई एम लर्निंग फ्रॉम हर एंड गेटिंग हर मोर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अभी बहुत छोटी है ये कहने के लिए कि क्या बनेगी, बट क्रिएटर मुझे लगता है सोर्स एनर्जी से आपको कनेक्ट करता है, और कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होनी चाहिए, और अपने बच्चों में भी इंस्टिल करनी चाहिए। But Anjali, mentioning that, that's so beautiful to hear it from you. Like, she is 13 and doing so many things. But Indian mothers on generic, they get really stressed and anxious about studies and academics. And they focus less on art and creativity. My own son is 6 years old, the younger one, but he is a very creative boy. As you mentioned, that creativity, you're born with it. So he love colors, he love arts, he love music, and his character is also lovable. Like, he loves to hug, he loves to make friends, be social, be happy. And I never force him for academics. But when it comes to the generic pressure from all over, like, my son did this and your son is not doing that, you did this. So कहीं ना कभी hurt होता है. तो कभी ऐसा होता है आपके साथ? Like, how do you handle that pressure? मैं ये प्रेशर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ, रीना। आई वाज नेवर, जिसे कहते हैं ना कि ए लिस्टर, बिल्कुल ए ग्रेड आएंगे आप फ्रंट सीट पे, और मैं हमेशा बहुत क्वाइट रही हूँ, और हमेशा मुझे जज किया गया है कि चुप है तो शायद समझ नहीं रही, शायद बोल नहीं पाती, शायद। आई नो, मैं 8th ग्रेड में थी और मेरा फर्स्ट एड आया था टीवी पे, ग्लैड रेड्स एक ब्रांड होता था उस समय। तो मेरे प्रिंसिपल ने देखा, दे वर लाइक, दिस गर्ल लुक लाइक अंजलि बट शी कैन नॉट बी बिकॉज शी इज सच अ क्वाइट गर्ल। Judgment. वो एकेडमिक्स में भी उतना ज्यादा आगे बोलती नहीं है, चुपचाप सुनती, बट आई न्यू दैट आई एम लिसनिंग, आई एम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। मैंने फेलियर से सीखा है, बिकॉज फेलियर्स गिव मी मोर टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और जो बच्चे फर्स्ट आते थे, वो भी बहुत जगह नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंच गई हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मतलब बाय सेइंग दैट, मैं ये बिल्कुल भी कहने की कोशिश नहीं करूँ कि मैं कुछ हूँ, आई एम नोबडी, आई एम नथिंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, बट आई फील आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस मच जो मैं चाहती थी। तो मैंने मेरी बेटी को कभी ये प्रेशर नहीं किया कि वो पढ़ाई में ही रहे। मेरे पास दो ऑप्शन थी जब मैंने मेरी बेटी को गुरुकुल में डाला, तो वो या तो हिंदी भाषा सीखे,
या फिर वो हिंदू धर्म, और जितने भी पेरेंट्स थे सबने अपने बच्चों को हिंदी लैंग्वेज में, बिकॉज बीइंग इन यूएस हम चाहते हैं हमारे बच्चे हिंदी सीखें, पढ़ना सीखे, लिखना सीखे। तो मुझे लगा हिंदू धर्म जानना जरूरी है, अच्छा इंसान बनना जरूरी है, बजाय कि भाषा, क्योंकि एक माध्यम है वो, तो मैं उसे कैसे भी सिखा ही दूंगी प्राइवेट क्लासेस लगा के। जब हम हिंदू धर्म सीखेंगे, शिवा शक्ति की स्टोरीज पढ़ेंगे, राधा कृष्णा की स्टोरीज पढ़ेंगे, नेचर से कनेक्ट होंगे, एनिमल से कनेक्ट होंगे, मदर अर्थ को, जब हम एक अच्छे इंसान बनते हैं ना, हम सक्सेसफुल अपने आप ही हो जाते हैं रीवा। Right. क्योंकि हम अपनी माँ के बारे में नहीं सोच रहे उस समय, हम मदर अर्थ और दुनिया की सब माँ वननेस एनर्जी में आ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में सिखाया गया है सिर्फ वन। आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो, गुरुद्वारा को देखो, तो वननेस की बात की गई है। एंड आई थिंक इट हैज हेल्प्ड हर टू कनेक्ट विद नेचर। शी इज वेरी माइंडफुल अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। Right. पानी भी वेस्ट करने से पहले सोचती है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचती है। तो इट्स नॉट कि आपके पास कमी है, यू आर माइंडफुल अबाउट योर Right. एक्शन। Yes. वो पढ़ाई हो जाती है। और कामयाब इंसान बनने के लिए एकेडमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी नहीं है, बट अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। और वो आपको नेचर और क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने से आता है। एब्सोल्युटली आई थिंक जब हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ए लिस्टर बने, अच्छा करें, क्लास में सब कुछ करें, आई थिंक सबसे पहले उन्हें सिखाना होगा कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। सबसे पहले उन्हें बना समझाना होगा कि नेचर से कैसे कनेक्ट कर दें। सबसे पहले कंपैशनेट, काइंडनेस, एम्पैथी सिखाना बहुत जरूरी है, आई थिंक, बिफोर यू टीच देम एनीथिंग एल्स। और मुझे ये लगता है कि हम अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते। दे आर वेरी स्मार्ट, आई आई फील दे आर वे स्मार्टर देन अस। आजकल की जनरेशन, जेनजी जनरेशन जो है, दे आर वे अबव जो हमारी सोच इस उम्र में है। और वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, दे ऑब्जर्व यू, आपके एक्शन। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम, जस्ट फॉलो दोज प्रैक्टिसेस जो आप अपने बच्चों में भाव डालना चाहते हो। आज मैं मेरी बेटी को बैठ के बताऊंगी ऐसे करो ऐसे करो, शी विल बी लाइक नो मम्मा, बिकॉज शी हैज हर ओन माइंडसेट। बट व्हेन शी सी मी बोइंग डाउन माय हेड, डूइंग सरेंडर, लाइक यू नो, जब हम मंदिर जाते हैं और हम मदर अर्थ के साथ जुड़ते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, पूरा लेट जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड बेंडिंग डाउन। वो जब देखते हैं तो उनमें भाव आता है, देर क्यूरियस टू नो क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं, वाई हैंड्स आर फोल्डिंग। जब हम दोनों लेफ्ट और राइट हैंड मिलते हैं तो हमारे अंदर की शिवा और शक्ति की एनर्जीज हैं वो जुड़ती हैं आपस में, दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स दैट बैलेंस। तो काइंडनेस मैं कहती हूँ होनी चाहिए। बाउंड्रीज बहुत, लाइक आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, आई एम वेरी काइंड हार्टेड, बट आई नो that my boundaries are strong. People don't have access to me if they cross my boundaries and they are not respecting me in my time. And similarly, she sees me, I'm soft, but my boundaries are stronger than anybody else. So She beautiful. does have boundaries. She learns it, she watches it, she observes it. So And, मैं uh, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हर पेरेंट को यही कहना चाहूंगी, बच्चों को सिखाओ मत, अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करो, अच्छे इंसान। क्योंकि जब मैं इंडिया आती हूँ, आई लव माई कंट्री, एंड मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में भारत जैसा कोई देश नहीं है। बट जब हम देखते हैं लोग माइंडफुल नहीं, सड़कों पे कचरा डाल रहे हैं, पूजा के नाम पे नदी में वो फूल दिए सब कुछ बहा रहे हैं। प्लीज बी माइंडफुल अबाउट मदर अर्थ, वाटर, ये सारे हमारे अंदर के एलिमेंट्स है। जब हम इनको रिस्पेक्ट करेंगे तो पूरा भारत अच्छा बनेगा। और जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो आप नेक नया भारत क्रिएट करोगे, नए बच्चे क्रिएट करोगे जो वही फॉलो करेंगे जो उनके पेरेंट्स कार से जा रहे हैं और केले का छिलका फेंक दिया सड़क के ऊपर। अब बच्चा जो देखेगा वो भी कल को जब होगा ना, तो उसको लगेगा कि दिस इज हाउ इट शुड बी डन, दे विल डू द सेम। absolutely. ये Absolutely. छोटा सा एग्जाम्पल है। और सब पेरेंट्स को वो बनना चाहिए जैसे वो चाहते हैं उनके बच्चे बने। मैं आपसे पूछना चाहती थी अंजलि, सिंस यू आर द थर्ड गर्ल इन योर हाउस हम्म। एंड यू आर लेफ्ट हैंडेड, तो उस समय में जब आप बॉर्न हुए थे, वर देयर एनी स्ट्रगल्स दैट यू एक्सपीरियंस्ड? बिकॉज गर्ल चाइल्ड को उस समय इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, और
third girl you've been, like not first, second, you were the third person. So how was the journey? Have you ever experienced that? पेनफुल थी जर्नी, बहुत समय तक मेरा चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि गर्ल चाइल्ड थी, फैमिली के कुछ ऐसे एल्डर नहीं एक्सेप्टेंस था, एंड देयर वर मेनी काइंड हार्टेड फैमिली मेंबर्स हु वर विलिंग टू अडॉप्ट मी, बट माय डैड सेड कि तीसरी बेटी है, लक्ष्मी आई, बिकॉज ही गॉट प्रमोशन सेम डे व्हेन आई वाज बोर्न, एंड he kind of resisted the family members and is like कि नहीं, ये लक्ष्मी आई है, and मुझे मेरे पेरेंट्स से प्यार मिला, बट हाँ, आते थे रिलेटिव्स बोलते थे वो तीसरी बेटी है और वो भी लेफ्ट हैंडेड है, तो पंजाबी में बोलते बज मीन्स डिफेक्ट, इट वाज कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट। और एक साल मुझे याद है मेरी मॉम ने, बिकॉज ऑफ दैट सोशल प्रेशर, मेरा स्कूल से भी वेस्ट हो गया था, जब उन्होंने फोकस किया कि मैं सीधे हाथ से लिखूं, मैं खाती भी उल्टे हाथ से थी, इन इंडिया इट्स कंसिडर्ड वेरी बैड कि अ, एक तो लड़की होना और उल्टे हाथ से। तो मुझे याद है, और शी गेव अप बिकॉज आई कुड नॉट राइट फ्रॉम Because you राइट were हैंड, born with that, yeah. बिकॉज दैट वाज nothing like she could change, but she gave up and she understood and she started, फैमिली ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, बट मेरे अंदर एक, मैंने लाइक आई सेड ना कि मैंने मेरे फेलियर से सीखा है कि जब आपको रिजेक्शन मिलता है, हाउ डू यू फील व्हेन somebody rejects you, the pain that creates within you, and I think आर्ट का जन्म पेन से होता है। मोस्ट ब्यूटिफुल आई आर्ट्स आई हैव क्रिएटेड सो फार, वो एक पेन की जर्नी में था, बिकॉज आई वुड से कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है ना, एंड बाय सेइंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वन फाइन मॉर्निंग आप सो के उठोगे और आप अवेक हो जाओगे, Right. इट बीइंग मोर माइंडफुल, रिस्पेक्टिंग, जैसे आज मेरी सोल आपकी सोल से इंटरेक्ट कर रही है, रिस्पेक्टिंग अदर सोल्स, क्योंकि कुछ किसी के साथ बुरा कर्मा करोगे तो जाके वहां मिलना है आपको, यू आर आंसरेबल फॉर दैट। तो वो बहुत पेन के टाइम में मेरे आर्ट क्रिएट हुए, शिव शक्ति, राधा कृष्णा कलेक्शन, और आई फील दे आर द मोस्ट मीनिंगफुल कलेक्शंस आई हैव Beautiful. डन। Radha Krishna collection that you mentioned was the first collection that has ever been done. So let us know about that. On the New York Fashion Week runway, because it's more about लोग इंडियन लोग भी बहुत न्यूयॉर्क फैशन वीक पे कलेक्शन अपने लॉन्च करते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल दी साउथ एशियन कम्युनिटी दैट हाउ फार वी हैव केम, बट मुझे लगता है कि उस कलेक्शन में हमने एलिमेंट्स यूज किए थे, आई लव लोटस, आई लव मोर पंख, जो छोटे छोटे कृष्णा की फ्लूट, तो वो सब एलिमेंट्स को हमने यूज किया था राधा कृष्णा कलेक्शन में, और थोड़ी बहुत स्टोरीज शेयर की थी, वी हैड अ फिल्म ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द शो, जहाँ से मुझे लगता है कि बहुत मीनिंगफुल इसलिए लगा कि जो यंगर जनरेशन है, या जो बहुत सारी डाइवर्स ऑडियंस है जो बैठ के हमारे शोज देख रही है, कुछ सीखेंगे, दे विल लर्न अबाउट व्हाट इज ट्रू लव, what is Radha Krishna, they might want to Yes. read more, understand, because आप जाके बैठो राधा कृष्णा टेम्पल में, and जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो, you feel because that energy is so potent, they teach you the true meaning of love। कितने लोगों ने बोला और आंसर किया क्या है लव, हम दूसरों में ढूंढते हैं, बट राधा कृष्णा कभी साथ नहीं हुए, or Radha was at peace. She knew that true love is about surrenderance. True love is about oneness. They were one. They were never separate. Yes. जो ट्रू लव होता है ना, वो आपको सारे यूनिवर्स और पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होना सिखाता है। लोग कहते हैं कि ट्रू लव वो है जब उसने मुझे डायमंड दिया, ट्रू लव वो है कि वहां से मुझे कुछ मिला और मैंने दिया तो उसने रेसिप्रोकेट किया, नहीं। ट्रू लव इज अबाउट surrendering, is about devotion, it connects you to the creative energy, it connects you to the source, और अभी तक आप सोर्स से कनेक्ट नहीं हुए, डिवाइन से कनेक्ट नहीं हुए, तो आपको ट्रू लव हुआ ही नहीं है। जिस दिन होगा वो आपको, इट विल बी लाइक होम कमिंग, इट विल इंट्रोड्यूस यू टू योर सोल, इट विल कनेक्ट यू टू द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो Ab- ये
है, राधा कृष्णा की स्टोरीज पढ़ोगे, और यही मेरा गोल था उस शो के माध्यम से लोगों तक सच्चे प्यार का मतलब समझाना और Beautiful. बताना। So tell me the biggest celebrity that you have met so far and you are very awe by them, like you cannot forget meeting them. Any one celebrity that you can recall. सो रीना, मैं बोलूंगी कि मेरी परिभाषा एज आई एम ग्रोइंग ओल्ड बदल चुकी है सेलिब्रिटीज की, बिकॉज मैंने इतने सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। दे लिव इन देयर ओन स्पेस एंड आई डोंट फेवरेटाइज दोज पीपल। मैं काम से काम तक का मैंने ये सीखा है कि किसी भी सेलिब्रिटी के साथ जब काम करो, इमोशनली अटैच बिल्कुल भी मत हो, काम करो और काम करके निकल जाओ, बिकॉज ये दुनिया बहुत कट थ्रोट है। दे विल यूज एंड थ्रो यू। मेरे फेवरेट परिभाषा, मैं उन्हें सेलिब्रिटी कहूंगी जो एनलाइटन सोल है। यही मैंने जो पॉडकास्ट भी शुरू किया था, मेरा माध्यम यही था कि एनलाइटन सोल्स के माध्यम से ट्रू सेलिब्रिटी वही है जो अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा है, जो जिसे दुनिया कुछ सीख रही है। और स्पीकिंग अबाउट दैट, मैंने रितेश्वर जी के साथ पॉडकास्ट किया था, और उन्होंने आके, मैं आई शेयर दैट क्लिप बोर्ड, बहुत अच्छा बोला कि ट्रू सेलिब्रिटी वही है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और स्पीकिंग अबाउट रितेश्वर जी से, और सदगुरु जो मेरे गुरु हैं, उनसे मिलके आशीर्वाद पाके उनका, उनसे वन ऑन वन बात करके, आई वुड से कि सोल टचिंग एक्सपीरियंस था जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनसे मैं बहुत सालों से, ओवर अ डिकेड, इतना कुछ सीखा है। और उनकी एनर्जी और वो मीटिंग मेरे लिए डिवाइन थी। और प्रेमानंद जी से मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी होंगे जिनसे मैं मिलूंगी अगर ईश्वर ने चाहा तो। बट यस, आई वुड गिव माई ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन फॉर माई मीटिंग विद सदगुरु जी। ब्यूटीफुल। सो मुझे एक बात बताइए कि आई रियली वांट टू नो दैट जब आप फैशन शो कर रहे होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क फैशन वीक या कोई भी फैशन वीक आप कर रहे हैं, और बिहाइंड द स्टेज कुछ ऐसा हो जाता है दैट्स नॉट प्लान्ड, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? लाइक देयर इज अ पर्सन हु हैज फॉलन सिक, या कुछ टैंट्रम शो कर रहा है कोई सेलिब्रिटी या कोई मॉडल इज नॉट प्रिपेयर्ड, हाउ डू यू हैंडल दैट? एंड इफ यू कैन शेयर अ स्टोरी without taking names. Yeah. नहीं, मैं नाम भी ले सकती हूँ, ऐसा मतलब मेरे बड़े प्यारे और डियर पीपल हैं Yeah, जो then भी we share. Yeah. फैमिली। सो देयर इज अ एक्टर कॉल्ड अभय वर्मा इन इंडिया। उन्होंने मुंजिया फिल्म की थी उस समय जब वो मेरे शो में पेरिस में, पेरिस का वो शो था, असेंशन थर्ड आई अवेकनिंग इन 2024, ही वाज अ शो स्टॉपर। Okay. ड्यूरिंग द फिटिंग, राइट बिफोर ही वाज गोइंग, फिटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, प्रैक्टिस हो गया, एंड फाइनली व्हेन वी वर पुटिंग द असिस्टेंट, देयर आर लॉट ऑफ हेल्पर्स बैक स्टेज, जब वो उनको फाइनल फिटिंग करा रहे थे, जिपर ब्रोक फॉर हिज गारमेंट। Now can you imagine like the how stressful Yeah. situation was? Yeah. 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 Things like that happen and there is a pressure, but I feel that कि जब आप इस फील्ड में आते हो, जैसे आप आर्मी में जाते हो तो आप तैयार रहते हो ना अपने बैकअप्स के साथ, तो इसी तरह से इस तरह के, अब दूसरा देश है पेरिस, डिफरेंट कंट्री, एंड इतना बड़ा शो, मैसिव ऑडियंस, अमेजिंग कलेक्शन, एंड इमेजिन शो स्टॉपर जिन Proper. जिन Yeah. शो के की पॉइंट हाईलाइटिंग इन above all बॉलीवुड एक्टर, वेरी हम्बल बॉय, वेरी स्वीट बॉय। तो हाँ, वी हैड अरेंज्ड बैकअप आउटफिट इंस्टेंटली, एंड यू नो वी हैड टू स्विच द लुक, और वो God. लुक्स ऐसे नहीं होते, शो के सिंक में होते हैं, बट वी मैनेज इट सो वेल। एक बार और भी हुआ था, एंड वी हैड टू स्यू द जिपर इंस्टेंटली। वो दोज आर द मोमेंट्स जब मैं अपने टीम में, मतलब मेरी टीम इज वेल इक्विप्ड, और मैं बोलती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ मैसिव वर्क इज ऑलवेज डन विद टीम वर्क। बट मैं खुद तैयार रहती हूँ सुई धागा लेके उस समय। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, फ्रॉम सुई धागा चलाना टू स्पीक ऑन दैट ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड टच द सोल्स। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। जब आप एक काम को कर रहे हो, यू हैव टू बी फुल्ली इन्वॉल्व, मतलब यू हैव टू चर्न योर सेल्फ एंड बी रेडी। तो
तभी आप उस चीज में सक्सेस, मतलब आप सोचो कि मैं तो यहाँ हूँ, आई वोंट डू दैट, दिस इज नॉट माई वर्क, आई लेट माई असिस्टेंट डू इट, आई You are screaming on others, yeah. मैं खुद अपना सुई धागा, बिकॉज आई ट्रस्ट माई हैंड्स, आई नो कि मेरे हाथों से कोई चीज निकलेगी तो वो मेरे स्टेज पे क्या, उसके बाद भी दैट विल नॉट गो टच द मस. So yes, I'm fully involved and I enjoy these things become memories. Yeah, Huh? yeah, that is true. So life for Anjali is Surrender. surrender. Okay, love for Anjali, uh, Divine, connecting to the divine energy, source energy, God is God. love. Work for Anjali. Worship. Okay, worship. Motherhood for Anjali. इसका आंसर वन लाइन में देना बहुत मुश्किल है. मदरहुड इंट्रोड्यूस्ड मी टू द शक्ति बिकॉज क्रिएटर हैज चोजन वुमेन टू बिकम द मदर, नॉट एनी अदर जेंडर. Yes. Unlocked the power, the potential in me, and I realized कि मैं माँ बन सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. I can move the mountains. So I would say moving mountains. And work for Anjali. Work is worship. And fashion for Anjali is. Passion. Fashion is fashion. That's great. Tell me the five top fashion weeks or fashion shows that you have done so far. Top five that you love. I have done so many. It's like, माँ से पूछना कौन सा वाला बेबी फेवरेट है, ऐसा हो गया. अभी हाल ही में आई थिंक शक्ति कलेक्शन. Like in fashion industry, the things are, especially in Bollywood, I'll be very specific. Western people, they are born with it, they have seen it. Our our industry is getting very revealing when it comes to women. Like blouses have literally have gone down to bralettes. So what is Yeah. your opinion on that? Why the industry is going like I'm not degrading anybody or I do not have any complaints as a choice, as a body. Are we misusing the word empowerment? Are we somewhere lost or confused with the fashion? बड़ा गहरा सवाल है रीना, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. बीइंग इन अमेरिका फ्रॉम 2 decades, वेस्ट कल्चर से आई फील इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली, आपने जो सवाल किया जिसे लेके, बहुत इन्फ्लुएंस्ड है. और मैं बोलूंगी कि वेस्ट में भी अब इतना रिवीलिंग नहीं है, बिकॉज हमें मालूम है जब हम शोज करते हैं तो ऑल फॉरेनर मॉडल्स, राइट. रेयरली कभी कभी हम स्पेशली इंडियन मॉडल्स को लेके आते हैं किसी कलेक्शन के लिए, एंड आई ट्राई टू इंक्लूड a few Indian models in my show because of my love for my culture and true global representation. तो वो भी आके बोलते हैं कि ये रिवीलिंग नहीं होना चाहिए. दे आर वेरी माइंडफुल अबाउट देयर बॉडी एंड देयर बाउंड्रीज. एंड आई फील वुमेन, एवरी वुमेन इज सो ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे, कि इस चीज की जरूरत नहीं है ट्रू ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए. मतलब ऐसा नहीं कि ये ग्लैमर नहीं होगा तो आप ब्यूटीफुल. आप एक सिंपल बिंदी लगा के, साड़ी पहन के, सभ्यता तो आ, आप देखो उस चीज में है जिसे ढक के और छुपा के रखा जाए, और उसमें भी खूबसूरती उतनी ही दिखाई देगी. बट जो भी चीजें मैं जब सोशल मीडिया को देखती हूँ, Hmm. इट काइंड ऑफ पेन्स मी कि Same here. कितना मिस यूज. मतलब अगर आप एक वल्गर गाने, 16 मेरे पीछे एंड ऑल दोस गाने, कोका कोला, ऑल दो स्टफ क्या काइंड ऑफ गाने करके अपनी बॉडी को इस तरह से दिखा रहे हो, तो आई मीन सॉरी टू से, क्या करेंगे लोग उसे देख के. जस्ट इमेजिन, एंड यू नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर गेटिंग सो मेनी व्यूज. इट पेन्स मी कि हर चीज व्यूज और नंबर्स का, पैसे का ही गेम बन के रह गई है, जहाँ सभ्यता लूज होती जा रही है हमारी. और लोग उसे देख के प्रोत्साहन ही दे रहे हैं. जब इस तरह के वल्गर आइटम गाने आते हैं, आप उनको देख रहे हो, व्यूज दे रहे हो, तो आई थिंक इट शुड बी कलेक्टिव. देयर हैज टू बी बाउंड्रीज एंड फ्यू थिंग्स नीडेड टू बी ए रेटेड. कि ये सिर्फ अडल्ट कंटेंट है, ये अंडर एज बच्चों तक नहीं पहुंच रहा, बिकॉज आई फील इट्स सो सेंसिटिव जो आजकल दिखाया जा रहा है. दैट इज नॉट हमारे टाइम में तो. अनफॉर्चुनेट बात ये है अंजलि जी कि ए लिस्टर एक्ट्रेसेस आइटम जी. सॉन्ग्स कर रही हैं जो उसमें आई थिंक नेग्लिजिबल कपड़े पहन के वो लोग बहुत रिवीलिंग कपड़े पहन के आइटम विच यूथ इज लुकिंग अप टू.
एंड Yes. व्हेन दे ऑल्सो ट्राई, बिकॉज जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको समझ नहीं आ रहा है कि कितना दिखाना है और कितना छुपाना है. एंड व्हेन देयर आर पीपल लाइक everywhere, there are people with good mindset, bad mindset. Do you think empowerment word has been taken for granted? Absolutely, this is not at all empowerment. और दूसरी बात मैं ये बोलूं कि ये जो हो रहा है, बहुत सारे, मैं नाम भी नहीं लूंगी, इन्फ्लुएंसर या क्या ही बोलूं, मैं तो इंडिया नहीं रहती, बट जो थोड़ा बहुत देखते हैं कि आके बोलते हैं भी व्यूज के लिए क्या नंगी हो जाऊं, और उन्हें दिखाया जा रहा है, उन्हें सो कॉल्ड सेलिब्रिटी लोग फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके नंगे तस्वीरों को लाइक करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर. कैसे वो आदमी होंगे जो डिस्पाइट ऑफ हैविंग देयर ओन फैमिली इस तरह के कंटेंट को एंकरेज कर रहे हैं और इस तरह की चीजों को दिखाया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव तौर पे स्टैंड लेना चाहिए, और फेमिनिज्म के नाम पे सिर्फ आदमी लोगों को ब्लेम करना कि वो, आपकी भी कुछ मर्यादाएं और बाउंड्रीज होनी चाहिए. और ऐसे लोगों को उस ए रेटेड की कैटेगरी में डालना चाहिए, 18 अबव, उसको ओपनली सोशल मीडिया, टीवी पे, मतलब दिस इज लाइक रूइनिंग योर यूथ. आपके घर में माँ भी है, बहन भी है, और आपकी जो कर रही हैं उनकी फैमिलीज भी देख रही हैं, तो देयर हैज टू बी सम बाउंड्रीज मॉडर्निज्म के नाम पे. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आई रिसेंटली हैव स्टार्टेड गोइंग टू जिम. तो मुझे एक ये स्वेट पैंट्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता. आई ऑलवेज वेयर लूज पजामाज एंड मे बी अ डिसेंट फुल स्लीव्स टी शर्ट. एंड मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है जिम करने में, बिकॉज आई नो नोबडी इज वाचिंग माय बॉडी और स्किन और समथिंग शेप और समथिंग. बट ये स्वेट पैंट्स आर सो मच ट्रेंडिंग, एंड लिटरली उसमें आपका हर बॉडी पार्ट दिखाई देता है, फ्रॉम बैक टू फ्रंट. डू यू थिंक दैट जिम वेयर के नाम पे हम लोगों को माइंडसेट ही चेंज कर दिया है, कि पहले लोग जिम नहीं जा रहे थे जब हमारे पास ये ट्रेंड्स नहीं थे? लाइक व्हाट इज दैट? देखो, मैं ये बोलूंगी कि ये ना बड़ी पर्सनल चॉइस है, हर किसी की. तो उस पे मैं कमेंट करना क्या नहीं, ही पर्सनल बोलूंगी. चॉइस, बट इट्स जस्ट आई एम इट इज डिजाइन, आई एम पर्सनल टॉकिंग अबाउट. चॉइस, बट आजकल क्या हर चीज सोशल मीडिया कैमरास के लिए हो चुकी है, कि आप जिम भी जा रहे हो तो बहुत सारे लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं, कि अब मैं रिकॉर्ड करूंगी, आई शो माई ग्लूट, आई शो दिस एंड आई एम इंस्पायरिंग, एंड दे आर नॉट. It has to be lifestyle. Going to gym, there's nothing showing off. It has to be a part of your lifestyle for your mental health, your physical health, for the sake of your own good. I do understand inspiring people for good thing, बट अपना बट दिखा के, ये बूब्स दिखा के, पेट दिखा के आप दिखा रहे हो ये मेरे एब्स, एंड यू आर कंटिन्यूसली गोइंग टू जिम जस्ट फॉर filming yourself and putting it on social media. It's like luring, and true feminine will never lure. She will live a mindful lifestyle. तो मैं ये बोलूंगी ये पर्सनल चॉइस है, बट डोंट डू इट to please and lure people. Do it for your mental and physical health. फिर आपको क्या अच्छा लगता है वो आपके और ऊपर निर्भर दूसरी बात ये, आजकल आप सोशल मीडिया पे देखेंगे छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जी. पेरेंट्स उनको, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट रेंजिंग फ्रॉम 4 to 10, गर्ल्स और बॉयज, डूइंग एक्शंस ऑन सॉन्ग्स, वल्गर सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स, जी. इन अडल्ट वे. जो छोटे बच्चे हैं जो समझ नहीं रहा है, वो तो अपना जॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, कि मम्मा ने या किसी ने मुझे सिखाया ऐसे मूव करना है, तो वो ऐसे ही मूव कर रहा है. देखो, घर में जो टीवी चलेगा रीना, टीवी पे गाना चलेंगे, मेरे पीछे 16 आगे 16 एंड ऑल दैट. जब वो देखेगा बच्चा, मैंने बोला ना बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो देखते हैं जो वो देख रहे हैं, जो मेरी माँ देख रही है, जो मेरे फादर देख रहे हैं. मेरे घर में इतने सारे टीवी, आई नेवर वॉच टीवी, मेरे पास टाइम भी नहीं है. आई एम सो फुली इन्वॉल्व इन माई प्रोसेस, एंड आई एम थैंकफुल कि जब मेरे होम थिएटर में चलते हैं तो प्रेमानंद जी चलते हैं, उनके भजन चलते हैं, तो मेरी बेटी वही सुनती है और उस चीज में इन्वॉल्व है. तो मैं सबको कलेक्टिव तौर पे बोलूंगी कि आप एक अच्छा यूथ क्रिएट करना चाहते हो तो भले ही वो अडल्ट्रेटिंग कंटेंट नहीं है, नेटफ्लिक्स पे इजीली अवेलेबल है, अमेजोन पे, आपके टीवी जो भी इंडिया में आते हैं उन पे अवेलेबल है, तो बी माइंडफुल. आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो, उस पे उनको गर्व भी हो रहा है, देखो हमारा बच्चा कैसे नाच रहा है.
अरे भाई, एक वुमेन की बॉडी है, अनफॉर्चुनेटली। एक बच्चे की बॉडी है, एक मेल की भी। यहाँ पे मैं जेंडर को भी नहीं वो करूंगी, आई एम जस्ट इंक्लूसिव। अंडर एज बच्चा है, वो इस तरह के भद्दे तरीके से, अभद्र तरीके से नाच रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो क्या ही होगा ना। कितना ज्यादा आप देखो ये चीजें बढ़ रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सब इन्हीं चीजों की वजह से तो बढ़ रहा है ना, बिकॉज देयर इज सो मच लस्ट आउट देयर। और जो दिखाया जाएगा, एंड आई एम सो हैप्पी इन दिस एरा, वी हैव मोर प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअल पीपल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, की उन्हें बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा उन्हें शेयर किया जाए। आई एम ग्लैड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। फैशन अपनी जगह है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, बट एंटरटेनमेंट को पॉर्न मत बनाओ। देयर हैज टू बी सम बाउंड्री। तो वेरी ब्यूटिफुली वो मेंशन। पेरेंट्स को समझना है, और वही बोलूंगी कि उनकी पर्सनल धारणा है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। कोई भद्दे गाने गा के भी आज फेमस हो रहे हैं, और कोई शिव कैलाशो के वासी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त ऋषभ विक्राम शर्मा, मेरे फेवरेट सिंगर, गा के भी दुनिया को हील कर रहे हैं। तो डिपेंड ऑन व्हाट यू चूज फॉर योरसेल्फ। Really well said that porn is like soft porn is easily available. OTT के या माध्यम से आप ये देखिए कि लव मेकिंग सीन्स जिसमें या हीरो एक्टर एक्ट्रेसेस ने कुछ भी नहीं लिटरली पहना होता, इट्स इजीली अवेलेबल ऑन OTT। एंड आजकल टीवी हर बच्चे के रूम में एंड दे कैन इजीली वॉच इट। सो इट्स वेरी या इंपॉर्टेंट कि आप घर में क्या प्ले करें, क्या देखें, कैसे इंस्पायर करें। और घर में स्पिरिचुअल जरूरी नहीं आप पूजा पाठ करें, बट समथिंग टू यू हैव टू डू टू। और मैं बोलती हूँ पेरेंटल कंट्रोल भी नहीं कुछ कहीं काम करेगा, कि कितना कंट्रोल लगाओगे अपने बच्चे पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। एक एकेडमिकली स्ट्रांग बच्चा तो है ही, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ध्यान देना, पढ़ना, पढ़ाई, क्योंकि आप एक नया समाज बिल्ड कर रहे हो, बट कंट्रोल लगाने से यूथ में सुधार नहीं होगा। घर का वातावरण चेंज करना, to live a meditative lifestyle, to teach them importance of yoga, teach them importance of workout, importance of spiritual practices, दिया क्यों लगाना है, क्या मायने है, that has a fire energy, what is important of water element in the life। पंच तत्व है हमारे जीवन में, नेचर से, एयर से, उनसे बात करना सिखाना। और जब आप वो करोगे फुल मून में, मून से बात करना, मून की एनर्जी से कनेक्ट होना, फूल पत्तों, नेचर से कनेक्ट होना, तो आपके बच्चे वो सीखेंगे। और सारा दिन आप टीवी के सामने देख के वो भद्दे नाच देखोगे, तो वो भी वही देखेंगे। भले लगा लो आप पेरेंटल कंट्रोल, दे विल फिगर आउट हाउ टू ओपन दैट, बट घर का ही एनवायरनमेंट चेंज करके आपको चूज करना है कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड योर फैमिली। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मैं इतनी ज्यादा चीजों से आपसे कनेक्ट कर पाई हूँ, आई कांट टेल यू। लाइक विद एवरी आंसर दैट यू हैव मेंशन्ड, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स इन द हाउस। लाइक my elder one who's 17 years, he's a classical music instrumental certified. And he has just been to national for basketball. Like दो चीजें मुझे हमेशा चाहती थी मेरे बच्चों में हो, एक हो म्यूजिक और दूसरा हो खेल। तो एकेडमिक जब वो 10th में था, एवरीबॉडी वाज लाइक तो 10th में ऐसा वी ट्रैवल्ड अ लॉट, ऐसा विल ट्रैवल। सो जस्ट बी माइंडफुल कि तूने एक बेसिक स्कोर करना है एंड यू विल नॉट स्ट्रेस आउट अबाउट इट। तो हमने कि बहुत। बच्चों में इतनी एनर्जी है ना, जब वो स्पोर्ट्स करते हैं तो वो एनर्जी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसको निकालना जरूरी है। और वो एनर्जी जब आपके अंदर रह जाएगी, तो फिर आप उसको अच्छी चीजों में चैनल नहीं होगी, तो वो गलत दिशा में चैनल होगी। तो आपको चूज करना है कि क्या मार्गदर्शन उनका करना है, किस तरफ उस एनर्जी को चैनल करना है, कहाँ से एनर्जी को लीक होना बंद करना है। मतलब मैं 20 साल से अमेरिका में हूँ, और मैं इतना ट्रैवल करती हूँ ना जी, मतलब सुबह और शाम का दिया, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, मेरे घर में लगेगा ही लगेगा, जो भी है, स्टाफ है, मेरी फैमिली है। सो ये दो प्रैक्टिसेस हैं, और सब लोग उस दिया में सर जरूर झुकाते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टे ग्राउंडेड, नो मैटर तुमने क्या पा लिया, कितना नीचे रह गए, कितना आगे, क्योंकि तुम आए थे खाली हाथ और जाओगे भी खाली हाथ, बट मिलना उस एनर्जी से है फाइनली। सो वी हैव टू गो डाउन टू मैं दैट आपको एनर्जी। विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि लाइक मॉर्निंग में वी डू दिस, वी गिव फ्लावर्स टू मंदिर वी हैव, यस, so every day we get flowers।
ठीक है, तो कभी कभी जैसे कुछ पीरियड्स होते हैं तो मैं नहीं करती हूँ इंटेंशनली, आई नो जी पीपल डू, बट फर्स्ट 2 days आई डोंट डू, सो आई आस्क माई हस्बैंड और माई सन कि आप करोगे आज, जी और एवरी इवनिंग वी डू दिया, आई डू या दिया, आई मतलब मैंने, मुझे किसी ने बताया नहीं है, बट आई सीन माई मदर डूइंग इट। तो तो ये आपको अपने बेटे को बताना नहीं पड़ेगा जब वो बड़ा होगा, बिकॉज इट हैज बिकम अ लाइफस्टाइल प्रैक्टिस। वो ये देख के बड़े हुए हैं, तो अपने आप उन्हें कुछ खालीपन लगेगा कि आप मम्मा लगाती थी एंड वी लाइट यूज्ड टू नहीं डू है, दिस, लाइट तो नहीं। मुझे भी दिया लगाना है, या मेरी वाइफ नहीं लगाएंगी तो मैं लगाऊंगी। दिस इज हाउ यू इंस्टिल दोज वैल्यूज। यू हैव टू चूज, बिकॉज हम बाहर नहीं सुधार सकते कि वो क्या पहनेंगे या क्या दिखाएंगे, बट हम खुद में सुधार कर सकते हैं, एंड वी कैन चूज व्हाट वी नीड टू bring for our आज family. मॉर्निंग में लाइक माय सन वाज लाइक आई एम गोइंग टू दैट प्लेस एंड दैट गर्ल इज आल्सो कमिंग, सो यू मेंशन वंस दैट यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नो शी इज नॉट as energetic as you are, तो आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, she's like she is coming, shall I go, I said I cannot chase you everywhere, Arnav. I Yeah. have instilled, I have discussed few things with you, you like it, you still go ahead, you don't क्या like नाम है आपके बेटे का? Arnav. आरना। आरना मेरी बेटी का नाम है। ओह माय गॉड। So he's like कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आने वाली हूँ, I gave you a lesson, now you decide, even या if you make mistakes I'm there for you, या but choose sensibly, be mindful in whatever you do, I think यस। वो ज्यादा जरूरी है rather than छोड़ना बहुत जरूरी है, हम हर जगह नहीं साथ रहेंगे। अब हमने अच्छा इंसान बना दिया ना, तो वो कहीं जाएंगे तो भी हमारी सोल में एक पीस है कि यू नो मेरा बच्चा, आई एम स्टैंडिंग विद माई किड, वो चूज करेगा, बिकॉज उसमें वो इंटेलेक्ट आ चुका है, उतनी बुद्धि आ चुकी है कि सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय करना वो समझ चुका है, very बिकॉज ऑफ smart. दैट, एंड दैट इज द ट्रू पेरेंटिंग। Very smart he is. So I want to ask you my last question. Like, what are the 3 values that you want your child, your daughter should always be carrying? रिस्पेक्टिंग एवरीवन इक्वली, हैविंग स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, कि देख इमोशन जब हम किसी को हेल्प भी कर रहे हैं तो यू नो नॉट टू इन्वॉल्व टू मच इमोशनली, एंड कनेक्ट स्पिरिचुअली। सो व्हेन आई से कनेक्ट स्पिरिचुअली, हो सकता है कि आज की जनरेशन के पास उतना समय ना हो मंदिर में बैठ के भक्ति करना, मंत्रा Mm, जाप करना, mm. बट spirituality means giving some time for your own soul, sitting with yourself and knowing yourself, because खुद को जानना बहुत जरूरी है। हम दूसरों को नहीं जान सकते, खुद को जानना ही इतना डिफिकल्ट काम है, तो खुद को जानना, बी काइंड एंड हैव हर बाउंड्रीज। And how do you manage her to stay focused in the world of distraction, especially mobile addiction? मोबाइल एडिक्शन तो मेरे को भी कितना समय मैं देखती हूँ, एंड आई ट्राई टू कट डाउन, आई हैव डिलीटेड दोज एप्स, आई हैव अ वंडरफुल टीम टू मैनेज माय सोशल मीडिया, फेसबुक ऐप, आई फुली गॉट रिड ऑफ इट, डिलीट कर दिया फोन से। सो इवन मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ और सीख रही हूँ। टाइम कंट्रोल का एक मैनेजमेंट कोशिश करते हैं मैनेज करने की, स्टिल नॉट देयर येट, बट दीज आर द थिंग्स, मेरे गोल्स हैं कि मैं इसको इतना कट करूँ टाइम को, एंड टू स्पेंड टाइम विद रियल वर्ल्ड, रियल पीपल, बिल्ड सोल लेवल कनेक्शन। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, जहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, यू नो, बी एट पीस, बिकॉज द एंड गोल शुड बी टू बी हैप्पी। तो मुझे भी नहीं पता, आई एम नॉट एक्सपर्ट विद दैट टू से क्या करना है, आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे टू So बी what अ is the बेटर one thing पर्सन। that you are doing actually to get rid of addiction or mobile? एडिक्शन ऑन इंटरनेट। Yes, on mobile scrolling. Yeah. सो मोबाइल स्क्रोलिंग को अब मैं सुनने में बहुत बुरा लगेगा कि जिन भी लोगों को फॉलो करते, तो ओनली थोड़े स्पिरिचुअल लोग हैं जिन्हें मैं देखती हूँ, बाकी सब म्यूट पे हैं। आई डोंट सी किसी के स्टोरीज फीड, सो मेरी जो एनर्जीज है वो लीक नहीं हो। वो मेरी क्रिएटिव एनर्जी इज वेरी पोटेंट एनर्जी, जब आप उसको, यू नीड टू चैनल, आपके चक्रास होते हैं ना, तो आई एम ट्राइंग टू चैनल माई एनर्जीज फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा, एंड सो इट डज नॉट लीक। जो चीजें जरूरी नहीं है मेरे Unimportant. जीवन में मेरे अंदर है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरी एनर्जी चैनल हो रही है उस समय
जो थॉट्स आ रहे हैं मैं उनको जर्नल करती हूँ। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, पोइट्री लिखना, म्यूजिक लिखना, और मेरे डिजाइन स्केच करना। तो वहीं से मेरी उन कलेक्शन का जन्म हुआ। अभी मैं एक कलेक्शन पे काम कर रही हूँ, देवी कलेक्शन उनका नाम है, बिकॉज आई हैव डन देवी साधना, भैरवी देवी साधना, एंड शिवा साधना से मैं देवी साधना की तरफ, मुझे लगता है शिवा ने मुझे देवी भक्ति की तरफ मूव किया। तो मेरी कोशिश ये है कि जब भी वो चैनल होता है तो मैं लिखती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, और उस जर्नल के थ्रू फिर मैं स्केचेस करती हूँ और मेरी नई कलेक्शन का क्रिएशन होता है। ये कोशिश करती हूँ। So beautiful. I think I can go on with you, Anjali. It's so connecting, nice and mindful and everything with you. So, but we have limited time and you are very, very Yes. good person. And I thank you for taking out time and being here and sharing things so spontaneously and so calmly and so nicely. I'm really glad. No, thank you so much for having me. It was equally pleasant speaking to you, and I also resonated with you on so many things. And in this podcast, I have learned so much from you, and God bless you. Thank you so much. And keep my page on unmute because I only post parenting. And I only post about motherhood. I only post about mental health. One last question that's left. I added that 75% of mothers in India do not get back to work because they are raising their child. What is your one message to them? People who leave their, especially mothers who leave their career to raise a family. What is your one message? देखो, वो तो सबसे बड़ा काम है। एक माँ, अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य है, इतनी वेल्थ है कि आप, वो सबसे बड़ी वेल्थ है। मतलब अगर आपने एक अच्छा ह्यूमन रेस कर दिया ना, वो सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं, मदर अर्थ ग्लोबल लेवल पे भी एक बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि वो बाहर जाएगा, अच्छा बच्चा बनेगा, अच्छी चीजों को प्रोत्साहन देगा। पर अगर आपके कुछ पैशन है, जैसे मैंने बोला फैशन मेरा पैशन है, तो मैंने मेरा काम नहीं छोड़ा, और मैं हर उस वुमेन को बोलना चाहूंगी, बच्चे हैं, फैमिली है, वो सब एक जगह है। आपको क्रिएटर ने इतनी शक्ति दी है कि आप माँ एक क्रिएट कर पाए हो एक नई लाइफ को। तो सोचो आपके पास कितनी पावर है। अनलॉक योर पोटेंशियल, डोंट बी फियरफुल कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। आप और भी अच्छी माँ बनोगी अगर आप अपने पैशन को परस्यू करोगी। आप में कोई टैलेंट है और उससे कंट्रीब्यूट करोगी आप वर्ल्ड के अंदर, तो आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाओगी, कुछ यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। डू दैट, इवन डू द सर्विस, बिकॉज सेवा भाव से जो निस्वार्थ सेवा भाव दूसरों के लिए भी नहीं किया जाता, वो अपने सोल के पीस के लिए भी, बिकॉज इट गिव्स यू सम पीस ऑफ माइंड, ग्रैटिट्यूड, और वही भाव आपके बच्चों में आएगा। सो डोंट बी फेयरफुल, गो अबव एंड बियॉन्ड टू परस्यू योर पैशन, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। तो शक्ति के पास कितनी पावर होगी, यू हैव दैट पावर। don't be negligence, don't have that negligence towards your power. You are a woman, you are a creator, and you have way more power than any gender. I'm being gender biased here, but सिर्फ औरत को ही शक्ति मिली है माँ बनने की, एक जीवन को क्रिएट करने की। तो सोचो इस बात पे क्या कर सकते हो आप। Beautiful. बहुत कुछ कर सकते हो। As you mentioned about Shakti, so we have two Shakti Peeth in Odisha, two major Shakti Peeth in Odisha only. So when you plan to come, do let me know. I'll make sure that you get access to everything possible here. Would be such a big blessing for me. Thank you so much, and I would love to meet you in person very soon. Absolutely same here. I likewise, the energies are so strong. I think we will meet. I think so. And Yes. Bhubaneswar आइए. I am not sure how long I've been here. I'm born and brought up in Chandigarh. I'm here on a Okay. project. Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.